Pause. You're looking, okay, most gorgeous. Well, actually, I came back today. I was shooting out in the northern parts of India, Shimla, Manali, Chandigarh for Bang Bang, and then for Kabir Khan's film called Phantom. So it's been a long shoot. It's been 65 days at a stretch, but I'm very happy to be home. I felt like I've been home after two months. It's a wonderful night. It's a wonderful function. It's something which is very special to me, and I made sure I made it back in time for this night. I think as actors, our work gets awarded. We get a lot of recognition, a lot of praise for all the things that we do. If a movie does well, if you do a nice ad, if you do a nice show. But I think the women tonight who are being recognized here, they are women who are doing amazing work but very rarely get recognized or get recognition or get any kind of praise or acknowledgement. So I think tonight is a very special award ceremony and something which is important. That is I mean, we're seeing if we can. It's probably going to be very unlikely because due to Bang Bang being a little delayed, there's a little too much date problems between Bang Bang, between Phantom, between Anurag Basu's film. So it may not be this year, but next year. I think tonight, because that's a very important topic you're speaking on, I think tonight should just be about what we're trying to do and what we're trying to give importance to these women tonight, who really are women who don't get a stage very often to be spoken about or to speak about the kind of special work that they are doing. And it's a topic, education, women, something which is extremely important in our country. So I think tonight, let's let it be about that. I think everyone must vote. It's the right of every citizen to vote. Everyone must vote, and they must vote for who in their hearts they feel will do the best for the country. I think tonight is about not just indirectly about safety for women, but it's about something which is more important than saying, okay, so we all know there's certain measures and precautions we must take to be safe. But tonight is also about empowering women. With education comes empowerment, and I think that that's an extremely important thing. Yes, we must be aware of safety. We must, do all the things we can possible to keep ourselves safe, to prevent, any untoward things from happening. But also, I think it's important that people first have knowledge, and then they can know what are the right steps to take to be safe and to, create a better environment. Yes, I'm very happy to be here. I'm very happy कि मुझे nomination मिला है आज इसमें. This is really very nice thing क्योंकि 14 different categories are there actually, and this is very unusual कि सारे अलग-अलग categories हैं. Arts है, science है, education है, sports है, films है, and this is very different award function, and I'm very happy, and my heartiest congratulations to L'Oreal and Femina for this award. मेरे ख्याल से चेंजेस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना इंसान बोर हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट चेंजिंग डे बाय डे. नहीं, अभी तक तो कोई ख़ास ऐसा पर्टिकुलर स्टाइलिश नहीं है. आई एम जस्ट कीप ऑन चेंजिंग माय स्टाइल. मैं कि पर्टिकुलर किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल. बस इतना चाहती हूँ कि ऐसी कोई सरकार आए जो हमारे देश में फ़िलहाल समस्याएं चल रही है. फार्मर्स सुसाइड्स कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 40 से 50 फार्मर्स ने सुसाइड किया है. तो ऐसी घटनाएं ना घटे, ऐसी कोई सरकार चाहिए जो मजबूत एक सपोर्ट दे, सारे कॉमन मैन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करे. ऐसी सत्ता चाहिए. डेफिनेटली मैं परिवर्तन देखना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ कानून सख्त नहीं है. अगर कोई कानून सख्त हो तो जो जुर्म करने वाले हैं शायद उनको एक डर लगा रहेगा. तो आई जस्ट थिंक कि सरकार ने कुछ करना चाहिए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में हमारे यहाँ बहुत वक्त लगता है. बहुत कई महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं. वो ना हो और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए. मैं इस इवेंट के साथ जुड़ी हूँ पिछले 3 सालों से. आप थे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. और ये सब वुमेन अचीवर्स हैं, फीमेल अचीवर्स हैं, और दे डन अ लॉट फॉर द सोशल वर्क, दे डन अ लॉट फॉर द कम्युनिटी. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर.
स्टाइलिश नहीं लग रही। मैंने पहले साल में भी एक साड़ी पहनी थी, फिर आई वोर अ ड्रेस एंड आज मुझे लगा कि मुझे वापस साड़ी पहनना चाहिए। आई जस्ट फेल्ट लाइक इट, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम तीनों एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ पहली बार आ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर सपोर्टिंग दिस इवेंट एज वेल। This is a women's award. 49% of women are the voters in our country. So I would just request everybody to vote because we are the only ones who can propagate change. As actually बहुत सारा कह गया है. Like they've said a lot of things. अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह सकती हूँ. I'm just saying that we also have to be careful now, especially in Bombay. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे के बारे में भी ऐसा बोलूँगी. But I think women all over India need to be just more careful, not go out alone after a certain time. I think that's it. You can't do anything else. There's not much that can be done till the government doesn't do something about it. I think हर शाम को I think औरतों को प्रोत्साहन देना चाहिए because they're very very special and I think it's a great initiative. We're here to celebrate women's achievements and women themselves and I think it says it all, women are worth. I think everybody should vote, especially women. I think it's very important. I think it's very important कि औरतें भी वोट दें, हम बाहर आएं and we make our choices known and use the power of the ballot. Well, lots is happening, but this is not the right time to really talk about anything. But yeah, you'll be seeing me very. Well, I'm doing some very exciting work and some very exciting directors. You'll be reading about it soon. I'm sure you've heard a bit about it, but this is not the right time to really talk about it. Yeah, thank you. मैं जनता से कहूँगी फैसला कर लो, चाहिए क्या? क्योस चाहिए या ऑर्डर चाहिए? लीडरशिप चाहिए, इंस्टेबिलिटी चाहिए? ग्रोथ चाहिए या डिक्लाइन चाहिए? क्या चाहिए? क्योंकि मैं सरकार चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए या गदर चाहिए? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ बैकग्राउंड से, मैं गवर्नमेंट में विश्वास करती हूँ। गवर्नमेंट जो गवर्नेंस करे और उस गवर्नमेंट का सही नेतृत्व उसके हाथ में हो जिसको काम करना आता हो, जो चाहता हो, जो कमिटेड हो, जो तजुर्बेगार हो, जिसके पास स्टेचर हो, कमिटमेंट हो, बुद्धि हो, समझ। चाहिए क्या? ये फैसला करना है। चाहिए क्या? डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, टेलीविजन चाहिए, डिवीजन चाहिए या विजन चाहिए? सवाल उठता है, नेशनल 2 ही पार्टीज है, नेशनल पार्टी सिर्फ 2 ही है, बाकी सब बहुत अच्छी स्टेट पार्टीज है जो अपना काम करती है, लेकिन नेशनल पार्टी सिर्फ 2 है। एक वो पार्टी जो अब तक सरकार पिछले 9 साल से चला रही थी और एक वो पार्टी जो ऑपोजिशन में थी। इस वक्त लोग जो सरकार 9 साल हमें बहुत स्कैम्स दे चुकी है उसको तो नहीं चाह रही, तो उसका मतलब क्या है? किसको चाह रही? नहीं कह रही कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं, मैं ये कह रही हूं इस वक्त लोग चेंज चाहते हैं और चेंज और उस पार्टी को चाहते हैं जिसके पास एक नेतृत्व है और वो है इस वक्त बीजेपी। मैं स्टेबिलिटी के लिए हूँ, मैं इस वक्त गवर्नमेंट, मैं चाहती हूँ इस देश को सरकार मिले, मैं इस देश को चाहती हूँ एक स्टेबल पार्लियामेंट मिले, ऐसी सरकार मिले जो पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट कानून पास करे और पार्लियामेंट हमें कायदे की पॉलिसीज दे। अगर हम एक ऐसी पार्टी को नहीं लाएंगे सही नंबर पे जिसको कहते हैं मिशन 272, तो फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी, कानून भी नहीं मिलेंगे, आपको कायदे का बजट भी नहीं मिलेगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपको यूनाइटेड इंडिया नहीं मिलेगा, इंडिया टुकड़ों में हो जाएगा। इस वक्त मैं नहीं चाहती मेरा इंडिया टुकड़ों में हो, मैं चाहती हूँ एक यूनाइटेड इंडिया हो, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट हो जो अच्छे कानून पास कर सके और जवाबदेही हो, अच्छे लोग ऑपोजिशन में भी बैठे और तजुर्बेकार लोग सरकार में भी बैठे।
ऑपोजिशन में भी बैठे, लेकिन सरकार चलाने वाले भी बैठे। हमारी सरकार भी चले लेकिन जवाबदेही हो ऑपोजिशन के लिए। हमको एक अच्छी ऑपोजिशन भी चाहिए, हमको एक अच्छी सरकार। वो तो लोग चुनने वाले हैं ना, लोग किसको चुनते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में विश्वास करती हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन विल गेट यू स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। इस वक्त हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए और वो गवर्नेंस अच्छे नेतृत्व के बिना नहीं आ सकती। और आज चांस है अच्छी गवर्नेंस के लिए भी और अच्छी गवर्नमेंट के लिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम समझदारी से अपना वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूथ को आज नौकरियां चाहिए, यूथ को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुजुर्गों को अच्छा और सबको तंदुरुस्ती चाहिए। सो एक और यूनाइटेड कंट्री चाहिए। हमको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं चाहिए, हमको एजिटेशन नहीं चाहिए, हमको इस वक्त केओस ही नहीं चाहिए। हमको सरकार चाहिए, हमको गवर्नेंस चाहिए, हमको पॉलिसीज चाहिए, हमको अच्छे बजट चाहिए और हमको बाहर का पैसा भी वापस लाना है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आज मैं यही कह रही हूँ, एक अच्छी ऑपोजिशन भी चाहिए लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए हमारे सबके भविष्य के लिए। और वो भविष्य आएगा एक समझदारी के वोट के साथ। धन्यवाद। तो मैं इस लड़की के साथ आया हूँ। ये मेरी इंस्पिरेशन है 2 साल से, बिकॉज़ ये लड़की जो है आंध्र प्रदेश के किसी गांव से हैं और वहाँ से ये आई थी इधर कुछ काम करने, कुछ करे यहाँ, और यहाँ आके ये मेड की नौकरी करती थी और इसको मार्शल आर्ट का शौक़ हुआ और करीबन 5 साल इसने मेड की भी नौकरी की। रात को मतलब पूरा दिन मेड की नौकरी करती है और शाम को ये जाके मार्शल आर्ट सीखती थी। और आज ये लड़की ब्लैक बेल्ट हो गई है और एंड शी नॉट ओनली हैज़ वन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स, बल्कि नाउ शी ऑल्सो कोचेज़ अदर स्टूडेंट्स। सो ये मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है, बहुत सारी औरतों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है। सो दैट्स इट, इसलिए मैं आया। तो इनको मेरे हाथ से अवार्ड नहीं मिला, मैं इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। मैंने अवार्ड किसी और को दिया है। चाचा मैं सभी से यही कहूँगा कि आप लोग वोट दीजिए। वोट देना बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। और जिनको वोट देना है ज़रूर जाके दीजिए, सोच समझ के दीजिए। Yeah, this is a very stunning, very delicate dress. It is by Cavalli, Roberto Cavalli, an Italian designer. हम लोग इस sort of material से पनीर बनाते हैं ना, मसलिन क्लॉथ के साथ, मलमल के साथ। वहाँ इटली में ड्रेसेस बनते हैं इसके। The show, yes, me and Neil are hosting this show together, and we're very excited. It's the first time I've ever hosted a show, so थोड़ी nervous भी हूँ, but ठीक है, देखते हैं कैसा चलेगा। बस ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप किसके लिए वोट करो, बट एक ऑप्शन भी है to vote for none of the above. So if you don't want to vote for any of the parties, please vote for none of the above. I mean, I've already obviously read, the script, and so I know all the nominees, and they are absolutely amazing women who've done incredible feats, and I'm just proud to be part of this and to at least, meet them in person and to represent them tonight. It's a huge issue, and I think there's a lot of solutions, but not so many of them are short-term solutions. Short-term solutions are fast-tracking in the justice system so that certain issues about women and crimes against women are taken in quick action. And then obviously on a long-term basis we need to educate people better, educate our men better in order to treat our women better, and that starts from a very early age and in all our schools. Yeah. मुझे फेस ऑफ द कॉज के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरे लिए बहुत स्पेशल बात है क्योंकि आज मैं अपनी सिंगिंग के लिए नॉमिनेटेड नहीं हुई हूँ, आज मैं अपनी सोशल कॉज के लिए नॉमिनेट हुई हूँ, एंड इट फील्स ग्रेट टू बी रिकग्नाइज्ड बाय फेमिना लॉरियल।
मैं एक्चुअली हार्ट पेशेंट्स के लिए गाती हूँ और मुझे ये मिशन चलाते हुए 14 साल हो गए हैं और अभी तक 624 बच्चों के ऑपरेशंस हो गए हैं और 3.15 करोड़ डोनेट हो गए हैं। एंड मैं हमेशा से बोलती रहती हूँ कि मुझसे अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं, बट हमेशा से मुझे सबसे एक एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि मेरे साथ एक मिशन जुड़ा है। मैंने अभी 124 सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर लिया आशिकी 2 के बाद, तो उसका फ़ायदा मेरे मिशन में भी हो रहा है। जहाँ पहले मैं 3 घंटे गाती थी, एक बच्चे का ऑपरेशन करवा पाती थी, आजकल मुझे एक ही शो से 5-6 बच्चों का डोनेशन मिल जाता है। आई हैव कम विद 3 ब्यूटीफुल लेडीज़, माई दादी, माई मामी एंड माई कज़न. And my brother is having his premiere tonight. He's given music in Dishkyao, so he's there. And my mama is with him. So. Chalo, bye. I think this is a great platform for people to be showcased here, and people who are working very hard in many areas, and people don't know how they're working. So this platform recognizes those nominees and celebrates womenhood today. So I think it's a great feeling. Yeah, I definitely feel women should be given more equal opportunity, and yes, in our country, I think at this point we need more women leaders. See, how did I get into business is because I was given equal opportunity by my parents, and that is the reason why I am here today. If my father differentiated between his son and me, I would not be standing here. It is because of their thinking and because of their doing that I'm standing here today. So the same way, it starts from your own home. So once that, when you look at it in a broad perspective, politically we definitely need more women leaders, and we must have, because it's very important for this country right now. Yes, of course, women should get more tickets. I think we were fighting for that 33%. That's still not come through. I think it should be 50-50. Why not? It should become 50% women, 50% men. How are we lacking? We're not lacking in any area. We are shoulder to shoulder with men today. So if we can do both the jobs well. We can take care of home as well, and we can take care of outside profession also. I work for an organization called Unlimited India, and we support startup social entrepreneurs in the country. So that's why, yeah. I think in some cities, yes, but I think the total number of women could definitely be increased in the elections. ये मेरे को मतलब अभी मेरे को कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा भी अवार्ड मिला। इसे वहाँ अमेरिका जाने से पहले ही मेरे पास कॉल आई थी फेमिना से, तो मैं सरप्राइज़ थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं जो मैगज़ीन पढ़ा करती थी और वही उसी मैगज़ीन में मतलब मैं सिलेक्ट भी हुई हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इवन मैं यहाँ पे आई हूँ, आज ये फेमिना की देन है जो आज अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। सोसाइटी बहुत कुछ कहती है, लेकिन आप अंदर से क्या कहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो आपको ज़्यादा करना ज़रूरी है। और आपको बाहर निकलना होगा, लोगों को बताना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर है वो चीज़ें। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी को देखिए या किसी को देख के आप दब जाए। उसी सोसाइटी को कन्वर्ट करके आप और ऊंचाइयों में जा सकते हैं, जो कि मैंने किया। अभी पहले तो एसिड अटैक को भी लेके कोई मुद्दा ही नहीं था, लोग बात ही नहीं करते थे एसिड अटैक पे। 1 साल से एसिड अटैक पे बात भी होने लगी है। पहले एसिड अटैक हो चाहे रेप केस हो, किसी भी अखबार के एक छोटे से कोने में आ जाया करता था। आज इन सारी चीज़ों को लेके फ्रंट पेज में आता है। तो अगर जब सब लोग खड़े होंगे तो काफ़ी प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और कोर्ट को भी, तो काफ़ी चेंजिंग आई। जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वहाँ पर महिलाओं का सम्मान मैंने बचपन से होते देखा है। मेरी दादी का, मेरी माँ का, बहुत सारे लोगों का जो काम करते हैं। मैं निम्न वर्गीय परिवार से था जहाँ पर महिलाएं बहुत काम करा करती थी, घर को वो संभालती थी। महिलाएं मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं। पुरुष जो हैं वो सशक्त होने का ढोंग करते हैं, जबकि सच्चाई इस बात में है कि महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं।
आप ज़्यादा हैरान मत होइए, ये सच है। और मैं ये इस पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ से नहीं कहना चाहता कि ये पॉपुलर नॉर्म बोलने का है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू understand anybody who has the power to give birth to another human being is anyway superior to any species in the world. लगता है कि जब भी समाज में बदलाव आता है उसका एकदम एहसास नहीं होता। हम उस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और इसका दायित्व पुरुषों पर है कि वो इस तरह की हरकतें, इस तरह की ऋणात्मक चीज़ें ना होने दें। और अब मेरा तो हमेशा से ये कहना है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सिर्फ बोलने के अंदाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर कार्य किया जाना चाहिए, इस पर बिल्कुल प्रयोग किया जाना चाहिए। किरण जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उनकी जो, हाँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, पर क्योंकि किरण जी को मैं 8 साल दोस्त की हैसियत से जानता हूँ, मेरी बहुत घनिष्ठ मित्र रही हैं और पिछले 28 साल से मैं उनसे ब्याह किया हुआ है। शादी में कभी कभी झगड़े वगड़े होते रहते हैं, मगर दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हमेशा उन्हें एक बहुत ही पावरफुल वुमन है, ईमानदार है, एक बहुत ही ईमानदार वुमन है, जो काम बोलती हैं वो करके दिखाती हैं और शी विल बी ए ग्रेट पार्लियामेंटेरियन। बिल्कुल, हम वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम वोट ना दें और फिर हमें कोई हक नहीं है कि आने वाले 5 सालों में हम किसी भी सरकार की आलोचना कर सकें, क्योंकि जिस सरकार को हम चाहते हैं, जैसी भी सरकार हम चाहते हैं, जैसे भी नेता हम चाहते हैं, उनके लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा वोट नरेंद्र मोदी जी को जाता है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जिस तरह से मैंने उनको स्पीचेस में देखा है, अगर किसी भी की स्पीचेस देखी जाएं और उनका एक बिल्कुल ही हैज़ ए प्लान एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश को, राष्ट्र को इकट्ठा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक ही विल टेक दिस कंट्री टू अनदर लेवल। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इफ़ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, जो सच है वो सच है। वो किसी भी पार्टी से होते तो मेरा वोट उन्हीं को जाता, बिकॉज उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि उनका देश के प्रति जो उनका दायित्व समझाते हैं वो बहुत अच्छा है। ही इज़ अनकरप्टेबल। आई हैव गॉन टू गुजरात एंड आई हैव सीन द काइंड ऑफ वर्क दैट ही हैज़ डन, एंड आई थिंक इफ ही कम्स टू द पावर ही विल ब्रिंग दिस, ही विल रेज द पावर ऑफ आवर कंट्री। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं हमेशा महिलाओं के लिए सख्त रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। I believe that one should always support who's right, and it's not defined by whether you're a man or a woman. But my association with Femina has been one of more than a decade. And before saying that I'm a Delhi girl or a Bombay girl, I always call myself a Femina girl, because winning the contest completely changed my life, and my support to Femina has been immense, and they've supported me immensely. And here we are looking at all the women achievers, and it's fantastic to be here. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Whenever I have to go and vote, I will go and vote, and I'm a good citizen like that. अगर मैं इस फोरम पर आकर बोल दूं कि नहीं, I'm going to support Congress, I'm going to support BJP, I'm going to support Aam Aadmi, I don't think I will come to this public forum and talk about politics like this. I think today we're talking about women, and let's stick to that. Absolutely, absolutely. I think you need a lot of confidence. You need to have a voice of your own, and I know a lot of people who are doing it. One of the finest examples right now is my dear friend Gul, and I support her tremendously. I'm not sure if I support any party, but I do support individuals in the way they think. I think it's extremely important. I think times are changing, and whether अगर आप कोई सेल फोन देखें उस पर भी ऐप्स शुरू हो गए हैं, अगर आप किसी कैब को बुक करें उस पर भी ऐप्स शुरू हो गए हैं, हर जगह women safety के ऐप्स शुरू हो गए हैं. I just hope that it becomes a better place. It's really unfortunate that it's still such a, I mean, with our country going so much more forward, it's so regressive to still wake up in the morning and read the paper and hear about rapes and other unfortunate things. But it's a glamorous night. Let's stick to all the achievement that women have achieved. I think times are changing. Women are becoming more and more powerful.
problems are always a part of life. There are many unfortunate incidents, not just with women, but they happen with a lot of all sorts of people. बहुत ही unfortunate बात है, but I think with more education, awareness, if women can realize and recognize that it's not a choice that they need to make between being powerful or being made to feel powerful. I think that's the key. They should know that they stand as good a chance at anything as men do, and yeah. वो एक कैरेक्टर है, किरदार है जो आप निभा रहे हैं. मतलब वैसे मैं घर से तो निकलती नहीं हूँ वैसे भी, so I would never show up like that on the red carpet for sure. But that's the beauty of being an actor, that you can be as gorgeous as you want to be, and then be as be able to blend in the crowd and not stand out. I think वो एक बहुत amazing ability होती है कि when you want to stand out you do that, and when you want to blend in you do that. So yeah. देखिए, politically मैं ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, बट आई थिंक द गुड थिंग इज़ दैट अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ हैपनिंग. इतना इंटरेस्ट, इतना जो आप क्यूरियोसिटी देख रहे हैं हर एज ग्रुप में, हर प्रोफेशन में, इतना आज तक मैंने तो अपनी इन माई years of reading the newspapers I've never seen. I'm curious about who's going to be the Prime Minister, who's going to be the ruling party. अच्छा है, people are waking up. There's a slumber that the country had gone into. So it's great that it's a new time that way. Thank you. ये पहली मर्तबा नहीं आ रही हूँ. मैंने पिछले कुछ सालों में भी ये इवेंट अटेंड किया है. I think L'Oreal's tagline of "You're worth it" and Femina's spirit and support for womanhood has and their marriage, their coming together to celebrate women is bound to be an exciting evening. In the past, I've noticed that Femina and L'Oreal have recognized some truly talented women who've done incredible work in different fields. And I'm looking forward to another such evening where we recognize and celebrate wonderful women who've done fantastic work. I have to say something, and मैंने कल एक बहुत interesting video देखा जहाँ पर बहुत चर्चा हो रही थी कि इस बार बहुत exciting है election. ये तो हम सब जानते हैं. But there was a lot of talk about how so many film actors have become a part of the election and how glamorous the election has become. I just want to ask people one question, especially my friends in the media, कि क्यों हम ये भूल जाते हैं कि actors are also citizens of this country, and just like everyone else, they are probably also yearning to be a part of change, to work towards that change. I feel sometimes because faces belong to the entertainment world, we tend to underestimate the reason behind why some of my colleagues and so many of our counterparts have taken this step. I think it's a wonderful thing. I also think कि जो भी इंसान पॉलिटिक्स में उतरता है हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सालों से हम यही बोलते आ रहे हैं कि बहुत गंदी जगह है, हमको नहीं उतरना है उसमें. लेकिन हम ये जान चुके हैं कि जब तक हम खुद नहीं उतरेंगे तब तक कुछ बदलाव नहीं आएगा. और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम there is a general consensus on the fact that maybe, just maybe, change can happen. I say I will never get into politics simply because I don't believe I have the emotional bandwidth to handle it. But for those that do, more power to them, credit to them, and I think we really should respect. देखिए, हम ये जान चुके हैं कि हमारे देश में एक कॉन्शियस क्लेंजिंग होने की बहुत ज़रूरत है. हम कितने सारे कैंपेन्स हैं, मेरा मतलब दिल टूटता है जब मैं थोड़े स्टेटिस्टिक्स देखती हूँ. कल ही मैंने एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग आर्टिकल पढ़ा जिसमें पता चला है कि over 250,000 girl babies, fetuses are killed in our country every day, every year. And that shocks you. For after all the so-called public service messages, after all the so-called government initiatives, after all of us, so many of us coming forward and saying, लड़की लड़के के बराबर है, लड़की को मत मारिए, फिर भी हमारे देश में हर साल
almost 2.5 lakh babies, girl child babies are killed. When you read statistics like this, you wonder क्या बदलाव आएगा. और I think बदलाव हम में आना है. हम जिस तरह सोचते हैं, हम जैसा रहते हैं, उसमें बदलाव.